Somewhere in the 1980s, nobody ventured out of the home on motorcycle for watching all this. Now it has become way of the culture. Even I like it. I am 60 plus, but I still like it. हमारे अंदर की जो बुराइयां थी जिसको हम मिटाने सुबह सुबह एक फ्रेश एयर की लिए लेने गए. This will go for a longer time now. Four o'clock in the morning. The city is still sleeping, but for us, the day is already half over. आज का मिशन बड़ा सिंपल है. Escape the chaos and find the Ganga. They say the journey is better than the destination. लेकिन जब destination ऋषिकेश हो, तो excitement double हो जाती है. Everyone's fueled up, levels checked, and hearts racing. Let's roll. मैं भाई कटकुट मार के कैसे कैसे भगाता हुआ आ रहा हूँ. मैं जान रहा हूँ यार. अभी भगाई मैंने भी, लेकिन फिर बाद में मैं स्लो हो गया. नहीं, अब नहीं भगाऊंगा यार. अब तो रोड पे आ रही है. अब तो भगाने वाली रोड आई. राहुल, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? मजे आ रहे हैं? ऑफ रोडिंग. नहीं होता This will be fun. अरे, व्हाट्सअप. हुआ कुछ जुगाड़? हो जाएगा, ऐसे ही चल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके. अरे चल रहे सब साथ में, वही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. हरमिंदर, व्हाट्सअप. व्हाट्सअप. विजन, मजे आ रहे हैं? नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? नहीं. चलो सही है. हेलो गौरव. बस समरो, व्हाट्सअप. बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है. बस सोलो राइड में मज़ा आता है. Riding in a group is not just about speed, it's about rhythm. एक साथ चलना, एक दूसरे का ख्याल रखना. As we hit the expressway, the Delhi smoke starts thinning out. The wind is cold, the throttle is smooth. This is the only therapy we need. No emails, no notifications, just the highway and the horizon. मेरे को ना बाइक लिए हो गए थे 6-7 महीने और मैं गया नहीं था कहीं. और फिर मैंने आपको अप्रोच किया और फिर मेरे को ग्रुप एक बार राइडिंग करनी थी. ग्रुप में सोलो में कर चुका हूँ 1-2 बार, बट वो नहीं मज़ा आता है. ग्रुप में बहुत ज़रूरी है रैंडम पीपल से मिलना, उनके बारे में जानना, अपने बारे में बताना. कहीं एक्सपीरियंस लोग मिल जाते हैं, मैच्योर लोग मिल जाते हैं. और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि आप सामने वाले को जानते नहीं हो ना सामने वाला आपको जानता है. वो वाली बात नहीं है कि एक दूसरे को जानते हैं. एग्जैक्ट जगह आप पहुंच जाते हो फन के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए. राइडिंग यही चीज़ बेस्ट है इसकी कि रैंडम लोगों को आप जानना शुरू कर लेंगे इसे. You can't just ride from Delhi and not stop at Chai Paratha. This is the soul of Indian road trip. बिना ढाबा स्टॉप के राइड अधूरी है. We are at a local ढाबा. गर्मा गर्म पराठे, सफेद मक्खन और कड़क चाय over these plastic tables is what keeps us coming back. So why do we ride? Because the motorcycle makes you feel alive. For me, this off-track biking was the weirdest one. I have never done it, and this was the first time I've done with your group. And I was able to manage it. That was the biggest thing. Nice. Because and more or less, the one route which we had taken from Haridwar to Shivpuri, the Chilla road, it was wonderful experience. It was beautiful. I will call it Gen Z is more enterprising than what we had in our own times. We were very. We never took adventure very seriously in my age. Somewhere in the 1980s, nobody ventured out of the home on motorcycle for watching all this. Now it has become way of the culture. Even I like it. I am 60 plus, but I still like it. And I really feel good when I join your groups. And as we crossed Haridwar, the air hits different. थोड़ी ठंडी, थोड़ी गरम. You have to be a dancer on two wheels. At the end of the day,
We ride because it makes us feel alive. जिंदगी चार दीवारों के बीच बैठने के लिए नहीं है. It's about the raw, unfiltered freedom. जब तक इंजन चलता रहेगा, तब तक हम चलते रहेंगे. We don't ride to add days to our lives. We ride to add life to our days. So I think I have been driving a motorbike for around 15-16 years. Now I have started this long route biking. This is my first route. I think I feel relaxed. I feel all the worries go on when I am driving a bike, and it is like a therapy for me. So it helps a lot in day-to-day life because once your mind is clear, you can do a lot of things. And I'm just enjoying myself. I'm almost cut from all the worries which we have in our minds on a daily basis. So this will go for a longer time now. I am expecting a lot of rides now for future. Nice. So from this ride, I checked my resilience, how much I can drive in a day. So around 300 kilometers we drove yesterday. Apart from that, met with lot of different generation guys. Few are young who are 25 around, and one was 64. So everybody was sharing their experiences, what Gen Z are doing these days and what old guys are doing these days, how they are managing these rides or how they are enjoying these rides, what were their experiences. So that was a takeaway from this ride to me. And around 250 kilometers later, here we are, dusty, tired, लेकिन दिल खुश है. From the concrete jungle of Delhi, यहाँ पे हम ढूंढेंगे नए पहाड़, नई वादियाँ और नए trails. The modern life is loud, notification, deadlines, stress, meeting targets. सब कुछ दिमाग में चलता रहता है. But on a motorcycle, you have to be present. One mistake and the road could remind you who's the boss. यहाँ सिर्फ focus होता है. You, your line, your throttle. It's the only time your mind actually goes quiet. लोग meditation के लिए बैठते हैं और हम helmet पहन लेते हैं. हाय, मेरा नाम राहुल है. मैं जब बाइक जैसे परचेज़ करनी होती है तो पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि बाइक में कि किस टाइप की हमें बाइक खरीदेगी टूरिंग करने के लिए. कि सबसे पहले कि टूरिंग बाइक हो, ये ना उसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें देखना चाहिए कि बाइक हमारे को कि पहाड़ों पर अच्छा की परफॉर्मेंस देगी. और एक तो सीसी अच्छा होना चाहिए बाइक का कि मतलब 350 से अबव हो, मिनिमम 250 तक चलता है. और हमें पहाड़ों पे जो हमारे शोकर्स रहते हैं, मेन शोकर की बात आती है हमारा कि शोकर बम्प अच्छे कर रहे हैं, जंप मतलब ज़्यादा जंप करते हैं तो मतलब वो हमारी टूरिंग में जैसे हिमालयन ले लो एक तरीके से. ऐसी देखो, बाइक तुमने तो ले ली, बट ना कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, करने कुछ भी जा रहे हो, वटएवर हो, टूर पे जा रहे हो कहीं भी, इसके साथ बाइक को समझ लो. तो अपनी बाइक को समझ लो, फिर बाइक जब तुम्हें समझेगी ना तो तुम दिल्ली से ले वगैरह कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे लिए. बहुत बढ़िया आएगा मज़ा. मैंने अपनी बाइक को समझ लिया. डायरा 2.0 था, आप लोग जानते होंगे. जब मैंने उसको लिया था बहुत मुश्किल नहीं हुई थी मुझे चलाने में आगे. बट जब मैंने उसको समझना स्टार्ट किया, उसने मेरे को समझना स्टार्ट किया, तो उसके बाद ट्रिप पे ट्रिप लगते गए. और हाँ, लग तो रहा है, लेकिन ये नहीं कि आप उसको भगाओ ऐसी जगह पे जहाँ आपको लगे हाँ भगाने लगे. ये नहीं कि आप ट्रैफिक में घुसे पड़े हो, वहाँ तुम 120 भगा रहे हो, उसको भगा रहे हो. आराम से चलाओ यार. घर वाले इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही है, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं. आराम से चलाना चाहिए. आज का दिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में हौच पौच हो गई थी क्योंकि हम लोग लेट उठे थे. लेट उठने के बाद हमें 4:30 बजे निकलना था दिल्ली से, बट हम उठे ही 4 बजे थे. तो वहाँ निकलने से हमें लेट होने की वजह से हम पहुँचे डेस्टिनेशन 5 बजे, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया था प्लान में. बट ये अच्छा था कि हमें जो बाइक का जो ग्रुप था हमारा काफ़ी वेट किया उन्होंने साथ में हमारे आने तक का. देन हम लोग साथ में गए और प्रॉपरली ब्रेक लिया बीच में अच्छे से और ब्रेकफास्ट किया. और राइड में कोई ऐसी जल्दी नहीं कि कोई बहुत जल्दी पहुंचना है. सब लोगों ने स्मूथली 80-90 की स्पीड से चला के डेस्टिनेशन तक हम लोग यहाँ ऋषिकेश आए हैं. और उसके बाद हमें ये नहीं पता था कि लोकेशन कहाँ है, किस जगह जा रहे हैं. तो एक था कि कहीं कैंपिंग करेंगे, बट और फिर बीच में एक ऑफ रोडिंग आ गई ऋषिकेश के बाद. 6 किलोमीटर ये पैच था जहाँ पर ऑफ रोडिंग थी प्रॉपर. तो वो पैच में ऐसा लगा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, 6 किलोमीटर कैसा होगा. बट जब हम डेस्टिनेशन पहुँचे यहाँ, जब हमने ये डेस्टिनेशन ये देखा और लोकेशन देखी तो हम समझ गया कि बर्थ इट है हमारा यहाँ 6 किलोमीटर का पैच वो ऑफ रोडिंग वाला. और ये पूरी जो ट्रिप थी हमारी क्या अच्छा होने वाला, मज़ा होने वाला है. बाकी ग्रुप अच्छा था,
तो वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द पीपल। तो वही हुआ, हमारा ग्रुप इतना अच्छा था, लोकेशन इतनी अच्छी थी, तो ओवरऑल ट्रिप में बहुत मज़ा आया। वी एंजॉय लॉट। एंड देन देयर इज़ अ ब्रदरहुड। अनजान लोग दोस्त बन जाते हैं। यहाँ आपकी बाइक का साइज़ मैटर नहीं करता, आपके दिल का साइज़ मैटर करता है। If you are on two wheels, you're one of us. That's simple. Wave when you pass to another rider. That's the only code. It means I can see you. Stay safe. I know exactly why you're here out. ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए कैंपिंग, क्योंकि प्रॉपर रिवर साइड में है, ऑफ बीट लोकेशन है, कोई क्राउड नहीं है, फूड बहुत अच्छा है और प्रॉपर यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हमको दी गई हैं। तो ऐसी लोकेशन का पता लगाना एक तो बहुत मुश्किल है। सैम भाई के लिए थैंक्स, इन्होंने हम ऐसी जगह पे लेके आए हमको, और मैं चाहता हूँ कि फिर से ऐसी ट्रिप्स हों। मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ दिल्ली से, तो बहुत रेयर हो पाता है मेरा आना, पर कोशिश करूँगा कि फिर से ऐसा ट्रिप ज्वाइन करूँ। मतलब ये तो अपना ड्रीम वाला वो था कि एक बार ये वाली ज़रूर करनी है। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन मज़ा आया नदी किनारे कैंपिंग करके आराम से, पार्टी शार्टी एंड रिवर क्रॉसिंग अभी आपने देखी कैसे किया, वो पूरा एडवेंचर हो गया। वो सरप्राइजिंग था, जो नहीं पता था कि होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड कि ऐसी चीज़ें होंगी कि हमारे जूते गीले हो चुके हैं। अब देखें, वो भी एक सरप्राइज ही है, हम कैसे जाएंगे कैसे। Motorcycling to me, in exact words if I say, the beauty of the lessons that it teaches to you, it's something that अगर मैं कभी तेज़ चल रहा हूँ उस थ्रिल को फील करने के लिए, और फिर मैं किसी का, भगवान ना करे, किसी का सडन बेसिस पे एक्सीडेंट नोटिस कर लेता हूँ, देन मेरे मन में ना वो मोटरसाइकिल मेरे लिए एक खौफ डालती है कि नो, थ्रिल किल्स। अब तुझे आराम से चलना है, कामली चलना है, तुझे कंट्रोल करके चलना है। तो वो मोटरसाइकिल ना मेरे मन में वो कंट्रोल भी रख रही है, मेरे मन में वो डिसिप्लिन भी रख रही है कि मुझे कहाँ पे स्पीड करना है, मुझे किसी को हार्म नहीं करना है, मुझे अपनी पीसफुल राइडिंग करनी है और दूसरों को एक पीसफुल राइड का मज़ा लेने देना है। सेकेंडली, इफ़ आई टॉक, अ मोटरसाइकिल इज़ मोर देन एन इमोशन, मतलब इट्स नॉट अ मशीन। आप इस चीज़ को फील करते हो, आप जब इसकी केयर करते हो ना, देन यू गेट टू नो दैट आपकी लाइफ में और भी ऐसे लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसकी आपको कदर करनी चाहिए, जिस हिसाब से आप अपनी मोटरसाइकिल की करते हो। The road might just end here, but the journey, वो तो बस शुरू हुई है। At RBR Motor Adventures, we don't just count the kilometers we ride. हम उन यादों को गिनते हैं जो हम हर मोड़ पर बनाते हैं। It's not about the brand of your motorcycle or the size of your engine. It's about the fire in your chest that screams for the horizon. अगर आपको भी पहाड़ों की ठंड और इंजन की गर्मी सुकून देती है, then you are exactly where you belong. Welcome to the tribe, welcome to the family, and welcome to the RBR Motor Adventures. चलिए साथ में मिलकर नए रास्ते ढूंढते हैं। Ride hard. Stay humble. We will see you on the next trail.